Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम सर। Uh, I think the last thing we discussed was length of a plane curve, and I just revised it briefly. That whenever we are given a curve in plane that is xy plane, uh, the curve is generally represented by a function f. We put some conditions on function, and we ask that the function should be continuous and differentiable so that there is no gap or sudden change of slope. And we want to find the length of the curve representing the graph of y is equal to fx from the point x is equal to a to x is equal to b. That means point with coordinates a of a to b of b. Now, if we divide this curve in small pieces, then each piece will be almost a straight line whose length will be some delta s. And during this variation from the start of delta s to end of delta s, there will be some variation in x that is called delta x, and the horizontal variation and vertical variation. And this small right angle triangle tells us that delta s squared, that means the length of the hypotenuse squared is equal to base squared plus perpendicular squared. And if this number of pieces in which we divide the whole curve become infinity, then these finite variations, delta s, delta x, delta y, they all become differentials. ds square is equal to x square plus dy square. And if we take the square root of this, and then dx square is taken from within the radical sign, dx squared taken common, it is only 1 plus dy by dx whole square is left, so that the differential ds can be written as whole under root containing 1 plus the derivative of y with respect to x whole square. And outside the radical sign, we have dx. And if we add all such contributions, then we obtain, or adding all these contributions, we have an integral from x is equal to a to b. And all such contribution added together makes the actual length. If you take dx common, dx square common in this radical, you have this formula in which integration is done on x. But if you take dy common from this, you will have dy square common, 1 plus dx by dy whole square. And then integration will be done on y, because dy square is taken common, और square root से बाहर निकल के dy हो जाएगा. Limits for y, now this whole will be y, a function of y, and integration of y, so limits are from values some c to some value d. Then I considered some examples, solve problems from exercise 6.4. Many a times we will be given some curves as a function of y, and we, in this case, take dx by dy and use the arc length formula in which integration is done on y, where y values are given like this. We will not be bothering about making the graph, etc. Let me put it on chart here.
So we'll not be bothered by functions graph, except for the fact that we look for any point of discontinuity, and we don't have a point of discontinuity in this case, because continuity is a necessary requirement for differentiation. So we take the derivative, take the square of that, put it into the formula, and see whether it becomes an integrable form. चूंकि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स में जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन आएगा, या तो वो खुद कंप्लीट स्क्वायर होगा या उसका डिफरेंशियल हमें बाहर के तौर पे मिल जाएगा. In this case, this is directly complete square, so integration is mostly very simple. It is this step. Okay, when you are given some function, then you have a function and you have to write down the derivative. Agar x is a function of y दिया हुआ, तो you have to write down dx by dy, and then derivative का square लेना है और square को formula में substitute करना है. And then mostly in these problems the integration is simple. Question number 3 भी solve किया यहाँ मैंने, और यहाँ पे function x का दिया हुआ है. So y is equal to a function of x in the limit x equals 0 to 1. You take the derivative of y with respect to x, जिसको हम आमतौर पर y prime लिखते हैं. y prime आ गया, y prime का स्क्वायर लिया और स्क्वायर लेके 1 प्लस y prime स्क्वायर के स्ट्रक्चर में डेरिवेटिव वैल्यू रखी. हम देखते हैं कि 1 प्लस 81 बाई 4x, इसका डिफरेंशियल 81 बाई 4 dx है, तो हमने 81 बाई 4 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो 4 बाई 81 बाहर आ गया. ये अब आ गया, अंदर एक फंक्शन है जिसकी पावर हाफ है और उसका डिफरेंशियल यहाँ मौजूद है, तो डायरेक्टली हमने पावर रूल इस्तेमाल करके फंक्शन रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 किया, and limit substituted, result simplified comes out to be in this form. This is also a similar question in which you have when y prime evaluated, 1 plus y prime square give you a structure in which whatever function there is inside the radical, उसका differential जो है वो मौजूद है बाहर, except for something constant that we ये वाला constant जो ये निकल के बाहर आ गया. अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो एक 9 और आएगा, जो हमने यहाँ पे सब कुछ करके दिखा दिया है. So these few questions I have solved. कहीं कुछ मिस्टेक हो तो देख लेना खुद ही. हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इट इज इंटरेस्टिंग. ये फंक्शन हमें एक्सप्लिसिट नहीं है. y is equal to fx हो, let me change the color, या x is equal to g of y हो, ये कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. नहीं, ये एक्सप्लिसिट, हाँ. लेकिन अगर आपको दिया हुआ है ऐसी फॉर्म जिसमें आप x और y में से कोई एक भी अलग ना कर सके, तो वो इम्प्लिसिट फॉर्म होगा. याद रहे हमने चूंकि फॉर्मूला इस शक्ल में पढ़ा है, 1 प्लस वाई प्राइम होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो y का डेरिवेटिव चाहिए होगा, या 1 प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर अंडर द रूट. तो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन आना जरूरी है, चाहे y इज इक्वल टू fx फॉर्म आए या x इज इक्वल टू gy फॉर्म आए. तो ये 7th क्वेश्चन जो है, इसके अंदर x इज इक्वल टू gy फॉर्म है, and x is a function of y. Now y varies from 2 to 4. So we just go for dx evaluation of, इसको simplify कर दिया x as a function of y को, so that dx by dy लिखना आसान हो जाए. जब dx by dy लिख दिया तो उसका स्क्वायर लिया, अंडर रूट के अंदर रख दिया, इसको सिम्प्लीफाई किया,
तो जो कुछ भी यहाँ पे हमारे पास आया, दिस इज बेसिकली y अपॉन 8 माइनस 2 अपॉन y स्क्वायर अपॉन 8 अपॉन 2 अपॉन y स्क्वायर का स्क्वायर है, बल्कि प्लस का। ये इसका स्क्वायर है, इसलिए मैंने डायरेक्टली अंडर रूट जो है वो हटा दिया। And whatever we have got is the value of this. So integrate it with respect to y from y is equal to 2 to 4 and a limit substituted, result obtained. क्वेश्चन नंबर 8 में भी x is a function of y दिया हुआ है। यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है। मैं थोड़े पहले कमेंट किया था कि अक्सर बेशतर हमारे पास आएंगे या तो अंडर द रूट एग्जैक्ट स्क्वायर मिल जाए, जिसकी वजह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए और इंटीग्रेशन आसान हो जाए, या जो कुछ अंडर रेक्टिकल आपको फंक्शन मिलेगा उसका डिफरेंशियल बाहर मिल जाएगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें इसी तरह के होते हैं, बल्कि बनाए जाते हैं सो दैट स्टूडेंट्स आर ट्रेन्ड in order to find the length of curve using integration. और अगर आपके पास ये वाला फंक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए और ये सहूलत जैसे ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया तो अंडर रूट हट गया, या पहले क्वेश्चंस जो हैं उनमें जो कुछ ये भी स्क्वायर वाला केस है, ये जो फंक्शन अंदर है उसका डिफरेंशियल जो है वो किस तरह बाहर अवेलेबल हो, जो फंक्शन इनसाइड दी स्क्वायर रूट है उसका डिफरेंशियल बाहर अवेलेबल हो। अगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं आती सामने तो आपने इसी कोर्स में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ी है, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपने 3 रूल्स पढ़े थे। आई होप यू रिमेंबर सम एंड दैट आई हैव मेड पार्ट ऑफ द फाइनल सिलेबस। मैं फाइनल सिलेबस पे भी बात करूँ, मैंने एक टेंटेटिव स्कीम आपसे शेयर की है और धड़ा मैसेज आना शुरू हो गया, सर ये बहुत लंबा ये वो है। आई मे curtail it down further, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है और तुम लोगों ने फिर वही करना है, 3 घंटे के 4 घंटे लगाओगे, कोई 5 घंटे लगाएगा, फिर भी कहेगा सर मेरे पास LMS नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे आप फिर ये वही लाएंगे। मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों को अहमियत नहीं देता। ऑनलाइन में सब होते रहते हैं मसले, लिहाजा मैं आपसे छोटा सा पेपर लूँ या लंबा सा पेपर लूँ, सूरत हाल एक ही रहेगी। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपने ट्रिपेजॉइडल रूल पढ़ा था, और 2 फॉर्मूले सिम्पसन के पढ़े थे, 1/3 या 3/8। So if given a problem of finding arc length, आपके पास इंटीग्रल ऐसा आ जाए कि ये सारी फैसिलिटीज जिसमें कि हमने एग्जांपल डिस्कस की हैं ऐसा ना हो, तो उस केस में आप इंटीग्रेशन थ्रू न्यूमेरिकल टेक्निक जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और whenever you are asked to solve any integral using Simpson's rule or trapezoidal rule, आपको कम से कम n is equal to 10 लेना चाहिए। 10 or 12 is sufficient for a reasonable approximation. अच्छा साहब, अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो in place of given in this explicit form and the limits, हम इस फंक्शन को पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x is equal to some function of t and y is equal to some function of t, where t varies from 0 to whatever। मैंने यहाँ 0 to 1 लिखा है, लेकिन जाहिर है कि सम t0 से लेके t1 तक। तो अगर मेरे पास एक आर्क लेंथ का प्रॉब्लम है जिसका फॉर्मूला ये है,
जो बेसिकली अगर मेरे पास पैरामीट्रिक फॉर्म हो, तो इन पैरामीट्रिक फॉर्म हम अभी पढ़ेंगे इसको मजीद, और पहले भी हमने देखा नहीं, इसको हमने पहले नहीं देखा शायद, कि अगर मैं इस dy/dx को dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो dy/dx can be written as this. So numerator is अच्छा, अक्सर और बेशतर dy/dt जो है वो y डॉट लिखा जाता है, और dx/dt जो है वो x डॉट लिखा जाता है. And dot means now we are taking derivative with respect to some parameter, जिसका y भी फंक्शन है और x भी फंक्शन है. अब उस पैरामीटर का नाम t हो, थीटा हो, फाई हो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वी राइट इट y डॉट एंड x डॉट. आपको पता है मैथमेटिशियंस थोड़े ये लेजी होते हैं, एंड दे अडॉप्ट शॉर्ट नोटेशंस टू राइट डाउन कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. लेकिन यहाँ मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल नहीं किए, कहीं के बीच में हो सकता है करूँ इस्तेमाल. सो dy/dt होल स्क्वायर अपॉन dx/dt होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम दिस. इसको अंडर द रूट रखेंगे तो dx/dt होल स्क्वायर अंडर रूट से बाहर चला जाएगा, dx/dt. आर्क लेंथ के फॉर्मूले में यहाँ dx है, तो इधर dx/dt डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर से dt ऊपर आ जाएगा और dx कैंसिल हो जाएंगे. So now the length of arc formula जो है that is transformed into parametric form. अच्छा, पैरामीट्रिक फॉर्म की जो मैं बात कर रहा था, अक्सर बेशतर हमारे पास सवालात होते हैं, हमारे पास फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है. फॉर एग्जाम्पल x is equal to 3 cos theta, y is equal to 3 sin theta. And we say that theta belongs to the interval 0 to pi. Now, if I try to visualize this function in terms of graphical representation, what will be values of x and y when theta is 0, cos 0, 1, x is equal to 3, sin 0, 0, so I have a point 3, 0 according to this, x is equal to 3, y. When I consider theta pi by 2, that means this direction, cos pi by 2 is 0 and sin pi by 2 is 1. I will have a point 0, 3. At pi, cos pi is minus 1, sin pi is 0. So I will have a point minus 3, 0. Now, if I take the squares of these two and add them together, so square will mean that this is 9 cos squared theta plus 9 sin squared theta. I take 9 common, cos squared theta plus sin squared theta, and this is equal to 1. So I get x square plus y square is equal to 9, which is a circle. But हमने सिर्फ आधा सर्किल लिया है, पूरा सर्किल नहीं लिया. अगर 0 से 2 पाई होता तो पूरा सर्किल हो जाता. पहला पॉइंट जो है वो ये आया, दूसरा ये, तीसरा ये. तो इसी तरह पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में हम अक्सर व बेशतर इस तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं. सो इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो विदाउट लिमिट्स ऑन थीटा, I just take squares, not directly.
I won't go taking squares directly. I will consider x by 3 and then take the square. Cos square theta, y by 3, y by 4 square is equal to sin square. पहला वाला sin था. और दूसरा वाला cos square theta. Now if I add them together, that will become 1. So x square upon 9 plus y square upon 16 is equal to 1. So this is an ellipse. तो पैरामीट्रिकली हम अक्सर और बेशतर हाँ खास तौर पे एक चीज़ ये देख नोट करो कि चाहे ये इक्वेशन हो चाहे ये इक्वेशन हो, ये एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट है. यानी अगर मैं इसमें से y अलग करूं तो इट विल बी 2 ब्रांचेस स्क्वायर रूट ऑफ 9 minus x square. Positive branch is represented by this. Negative branch will be represented by, so positive is represented by this. The negative branch will be represented by pi to 2 pi. So we have utility of parametric representation. For the time being, we are just trying to learn that if a function is given parametrically, then we modify our formula. X is a function of t, y is a function of t. So x का derivative respect to t निकाला, y का derivative respect to t निकाला. Dx by dt whole square or dy by dt whole square. Now these are derivatives of first order, and we are taking a square. So it is not second order derivative. First order derivative is square. So derivatives लिया, इसका derivative 3t square, 3 cancel t square, इसका derivative 2t 2 cancels. X dot square plus y dot square is equal to 2 t raised to power 4 plus t raised to power 2, t square taken common and placed under the root. So ये t square जो कॉमन निकाला था वो बाहर आके t dt बन गया, अंदर है t square plus 1. So t square plus 1 जो है वो उसका डेरिवेटिव 2t है, लिहाजा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने t स्क्वायर प्लस 1 रेस्ट पावर हाफ को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया पावर 3/2 अपॉन 3/2, बिकॉज हमने 2t कंस्ट्रक्ट कर लिया था, 2t dt टू रिप्लेस any substitution that we make for t square plus 1, say u power half है ये, u power 3/2 upon. Then ultimately हाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने में ये होता है कि अगर आपको ये बात सब याद है कि इस तरह डायरेक्ट इंटीग्रेट लिखा जा सकता है, तो फिर आपको लिमिट जो है उसको संभाल रखने की जरूरत नहीं होगी, साथ साथ रखिए लिमिट, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने के बाद लिमिट प्रैक्टिकली चेंज करनी चाहिए. जो गो के मेरा स्टाइल नहीं है, मैं इंटीग्रेशन करता रहता हूँ, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो वापस ओरिजिनल वेरिएबल में जाके फिर दोबारा से लिमिट कंसीडर करता हूँ. So limit considered and evaluated the length of arc. For the given parametric representation of a curve for parameter values from 0 to 1. Question number 28, and we have again a similar question in which after taking derivatives x dot y dot, the squares of these two added together, and we note that there is something common. Put under the root the common thing, which is 1 plus t whole square, goes out of the radical, 1 plus t dt. Whatever is under the root, इसका डिफरेंशियल जो है वो 18 times 1 plus t. तो हमने 1/18 और 18 ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये डिफरेंशियल आपको मिल गया फंक्शन इनसाइड का. तो u raised to power half tu. So u raised to power 3/2 upon 3/2, limits substituted, and the arc length obtained. More such problems. This is very simple. Derivative taken, squares taken,
स्क्वायर्स में से कुछ कॉमन निकला, बाकी जो बचा वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, वो 1 हो गया। फिर कॉमन निकला था रूट के अंदर से 4, बाहर जाके 2 हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ dt रह गया 0 to π/2 एंड द प्रॉब्लम इज सिंपली सॉल्व। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बनाने के लिए ये कंसीडर किया। x का डेरिवेटिव लेंगे तो cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और t साइन टी का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1, साइन t एज इट इज, फिर t एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos। इसी तरह y डॉट साइन का डेरिवेटिव cos और माइनस t cos t, t का डेरिवेटिव 1 माइनस cos t, t एज इट इज, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इनका स्क्वायर लें, इनका स्क्वायर, अब क्या बचा, साइन टी यहाँ कैंसिल हो गया, कॉस टी यहाँ कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों में टी स्क्वायर कॉमन है, वो बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आके उसको टी किया हमने तो अंदर सिर्फ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रह गया, जो कि 1 है। इंटीग्रेशन इज सिंपल। In case you have e power t into cos t and e power t into sin t, we still see that the x dot y dot expand because product of two functions है, e power t taken common in each case, और in derivatives का स्क्वायर ऐड करेंगे तो things will simplify। इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 + 1 2 आ जाएगा, और साइन टी कॉस टी, यानी इसमें और इसमें जो मिडिल टर्म आएगी, एक में नेगेटिव होगी एक में पॉजिटिव होगी, और कैंसिल होके सिर्फ 1 + 1 यानी 2 बचेगा, एंड इंटीग्रेशन इज ओनली ऑफ दिस थिंग। लिमिट सब्स्टिट्यूटेड एंड रिजल्ट ऑब्टेन्ड। एक और एग्जांपल मैंने डिस्कस की है जिसमें पहले तो e पावर t के साथ सिर्फ एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाया था, अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉम्बिनेशन लगाया, but still we have very simplified result under the root, and you can do such things easily. So that's all about arc length discussion, and let me move to problems of surface of area of revolution. अच्छा, मैं इस वक्त आपके साथ ये डिस्कस तो कर रहा हूं कि कोई मेरे पास एक फंक्शन है y = x, जिसका ग्राफ xy प्लेन पे बना भाई। अगर मैं इस ग्राफ के को रिवॉल्व करूं अराउंड x एक्सिस, तो क्या होगा, ये पॉइंट x एक्सिस के गिर्द घूमेगा, अगर मैं इस वर्टिकल लाइन को जिसकी हाइट जो है वो FA है, इस पूरी लाइन को रिवॉल्व करूं तो ये डिस्क बन जाएगी। इसी तरह यहां पे जो लाइन है, अगर ये पॉइंट BFB है तो ये हाइट FB होगी। अच्छा, यहाँ जब FA हाइट की लाइन को हमने x एक्सिस के रिवॉल्व किया तो हमने कहा ये डिस्क बनी। ये डिस्क किस तरह की बनी, ये सर्कुलर डिस्क है।
ऐसी सर्कुलर डिस्क जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है और रेडियस जो है वो ये है। अब मुझे इस सर्कुलर डिस्क का अगर एरिया लिखना है तो एरिया ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज आर, रेडियस इज दिस, सो पाई एफ ए स्क्वायर हो जाएगा। Now this point revolves this line of infect. If this line whose height is FB, if that is revolved around x-axis, so you will get another circular disk. Now this is another circular disk जिसका एरिया, जिसका रेडियस एफ बी है और जिसका एरिया हो जाएगा एफ बी स्क्वायर। अच्छा जी, इसी तरह मैं इस कर्व पे हर पॉइंट की जो प्रोजेक्शन है ऑन द एक्स एक्सिस, इसको रिवॉल्व करूंगा अराउंड एक्स एक्सिस। Now this is arbitrary point x f x. So ये सर्कुलर डिस्क जो आएगी इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आपकी रेडियस जो है एफ एक्स होगा। In fact, each point on the surface revolve around x-axis, make a solid. In fact, not each point, बल्कि हर point को x-axis प्रोजेक्ट करने वाली लाइन जो है, that line is revolved around. So we will have disk all around. तो एरिया तो ये हुआ, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालो, बट फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं इन लाइंस को रिवॉल्व करने के बजाय सिर्फ कर्व को रिवॉल्व करूं, यानी कर्व के पॉइंट्स को रिवॉल्व करूं, तो फिर ये सॉलिड नहीं होगा, अंदर से हॉलो होगा। एंड दैट इज द केस दैट आई हैव कंसीडर्ड इन दिस आर्टिकल, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। That means we are now only revolving the curve around x-axis. When only curve around x-axis is revolved, तो हमें इस सरफेस जो आज अभी हॉलो सरफेस है, जैसे हमारे लाउड स्पीकर की शेप होता है ना, वैसी हॉलो सरफेस है ना। इसमें से हम जब सॉलिड था तो हमने स्लाइस काटा था। जब सॉलिड है, वॉल्यूम के लिए हमने ये स्लाइस काटा था और हमने कहा था कि इस स्लाइस का वॉल्यूम जो बनेगा वो एरिया ऑफ द स्लाइस इनटू डेल्टा एक्स बना था, और फिर इसको इंटीग्रेट करके हमने अपना फॉर्मूला बना लिया था वॉल्यूम ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, ए टू बी पाई एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेकिन अब सॉलिड नहीं है, अब वी आर टॉकिंग अबाउट, इंस्टेड ऑफ सॉलिड वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द सरफेस ऑफ द सॉलिड। जब मैं सरफेस ऑफ द सॉलिड की बात कर रहा हूं तो अब इसमें से मैंने ये एक
इस सरफेस का एक हिस्सा काटा, जैसे कि मैं डबल ओडी काटता हूं, लेकिन अब जो काटा तो I don't have a solid figure available. It's not like having this left disk and this right disk. It is more like this surface जो कि hollow है, and the comparison between this के इस surface का ये जो part है इसको मैंने base कर दिया. This part is the top of the surface. Inside is hollow and this is the curved part of the surface. और इस surface का मुझे area चाहिए. Now the right side is at the bottom in this figure. तो right side पर जो radius है वो function value है, because पहले भी function value radius बनी थी. और जो इन ऊपर वाली टॉप साइड है उसका रेडियस जो है वो भी फंक्शन वैल्यू है. अब अगर मैंने एक x k -1 पे काटा है और एक x k पे काटा है, परपेंडिकुलर, दिस कटिंग इज परपेंडिकुलर टू x, तो एक x k -1 पे होगा और दूसरा x k पर होगा. सो x k पर रेडियस जो है f x k होगा और x k -1 पर जो रेडियस है वो f k -1 होगा. So here is the radius of the upper part, here is the radius. Now this thing is called frustum. And we'll come to this term little later again. अब इस फ्रस्टम जो कि पीस है इस सरफेस का, इसमें हमने लेफ्ट या अपर रेडियस ये लिखा, राइट और या लोअर रेडियस हमने ये लिखा. राइट का मतलब एक्स के, लेफ्ट का मतलब एक्स के -1. लेंथ ऑफ फ्रस्टम क्या आ गई, एक्स के -1 से एक्स के तक, जिसको मैं एक्स के -1 लिख. इसका मतलब है कि और फ्रस्टम की हाइट कितनी आ गई, हाइट विल बी द डिफरेंस ऑफ द फंक्शन वैल्यूज. कौन सी हाइट की बात हो रही है, ये वाली हाइट की बात हो रही है. So again using Pythagoras theorem, फंक्शन वैल्यूज का डिफरेंस डेल्टा वाई स्क्वायर की तरह का और एक्स वैल्यूज का डिफरेंस डेल्टा एक्स स्क्वायर की तरह का. दिस इज द लेंथ ऑफ द कर्व इन एक्स वाई प्लेन, यानी ये वाली लेंथ आ गई एक्स वाई प्लेन. अब थोड़ा सा कैलकुलस इस्तेमाल करते हैं. आई होप सम ऑफ यू रिमेंबर study of Cal1, Lagrange mean value theorem. That says that if f is continuous on interval AB, differentiable on this open interval AB, then there exists at least one point C belonging to the interval AB such that the derivative of the function at C is nothing but fb minus fa divided by b minus a. जिसको ज्योमेट्रिकली अगर आपको जिस उस्ताद ने पढ़ाया होगा, अगर ये दो पॉइंट्स हैं ए एफ ए बी एफ बी, तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो है
उसका स्लोप है एफ बी माइनस एफ ए। अगर फंक्शनल ग्राफ जो है वो कोई कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है like this, you will find many points where the tangent will be parallel to this line. Whereas Lagrange मीन theorem claims कि कम से कम एक जरूर होगी. So we use this Lagrange mean value theorem for the interval with x value starting at xk minus 1, terminating at xk, corresponding function value. फंक्शन हम जब भी कंसीडर कर रहे हैं कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल कंसीडर कर रहे हैं तो Lagrange minimum theorem applicable है. In between these 2 points we will have a point where the derivative will have this slope. That means function values का जो difference है that can be written as derivative at a point between these two x values into difference of x values. Difference of x values को हमने delta x कह दिया और वापस यहाँ पर आए. इसमें fxk minus 1 की जगह f prime c into xk minus 1 लिख दिया whole square plus xk minus 1 whole square. अब अगर मैं इसके अंदर डेल्टास का इस्तेमाल करूं तो डेल्टास will make this length of the kth frustum curve part, it will be like f prime c into delta xk whole square plus delta xk whole square. उसमें से डेल्टा एक्स के होल स्क्वायर निकाल लें तो वो बाहर चला जाएगा, अंदर 1 प्लस एफ प्राइम सी होल स्क्वायर. ना सी जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, दिस सी sometime written as x star xk star to indicate that it is some point in the kth interval where the Lagrange mean value theorem will give us this. So this expression of length of this curve is obtained. Now, one, sorry again. ये कल से प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है वाईफाई हमारा. Sorry for the disturbance. Now, this surface area of frustum, this frustum, which is part of our surface of revolution, elementary analytic geometry से ये रिजल्ट लिया है मैंने. This is R1, any upper part radius. This is R2, lower part radius. So whole area of the frustum is given by pi R1 plus R2 into the length, and the length means basically this length or this length. So length is considered this thing. हमारे पास चूंकि ये length जो है, it is being generated by a curve, तो ये length भी curve है. लेकिन ये जो फ्रस्टम का फॉर्मूला है ये स्ट्रेट लाइन लेंथ के लिए है. बट कैलकुलस की हमारी जो अप्रोच है कि break down the problem into smaller pieces. These are small finite pieces where this is appearing to be curve. But when we consider very, very, very thin piece, this curve part will practically be straight line. And that allows us to use this directly.
Now, as I indicated, R1 is fx. अच्छा इसको मैं R1 ये R2 है ये R1. Notation doesn't matter. इनमें से एक जो है वो upper radius है, एक lower radius है. So pi times upper radius, lower radius added together into the length of this curve, and that length of this curve has been already obtained in formula 3. So we get this formula for surface of this frustum. So we write down this as delta SK यानी kth frustum. और अगर हमने सारी surface of revolution जो है वो इस तरह के फ्रस्टम्स में डिवाइड की हुई है, एक यहाँ पे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, and these number of frustums are increased to infinity. This delta S K will ultimately become integral. इस लास्ट रिजल्ट लिखने से पहले एक ट्रिक और इस्तेमाल की है हमने, वो भी कैलकुलस से. ये जो R1 प्लस R2 है उसको एक फंक्शन बनाना, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. It says that f is continuous on AB. Continuity is sufficient. और इसका जो ग्राफ है A से लेके B तक कुछ इस तरह से है, या और जैसे टेढ़ा मेढ़ा है. ये है AFA, ये है BFB. अगर मैं FA और FB जो नंबर्स हैं इनका एवरेज लूं, तो इनका जो एवरेज आएगा वो इन दो के बीच में कहीं आएगा ना. Now you will be able to find a point on the graph if the graph is continuous. There exists at least one point C belonging to the interval AB such that function की value, now we're not talking about derivative, function value, FC will be equal to F average of FA and FB, this, with C belonging to the interval AB. तो ये जो फिगर हमने बनाई है इसमें एक नहीं दो कम कम तीन वैल्यूज हैं, जहाँ पे फंक्शन की एंड पॉइंट पे जो वैल्यूज हैं उनका एवरेज वैल्यू जो है वो इस सी पे भी आ रहा है, इस सी पे भी आ रहा है, इस सी पे भी आ रहा है. सो वी हैव यूज्ड दिस टेक्निक टू get rid of this fxk plus fxk minus 1 function values at two different x divided by 2. तो multiplied by 2 भी करूंगा. Divided by 2 जो है वो fb बन गया, where b is some point between the interval xk minus 1 and xk. तो कैलकुलस की मदद से हमने फिर यहाँ पे कैलकुलस 1 की एलिमेंट्री टेक्निक की मदद से हमने फिर यहाँ पे इस्तेमाल किया. एंड देन सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, तो जो हमारे पास फोर्थ रिजल्ट आया है इसके अंदर सम ऑफ द टू फंक्शन वैल्यूज है. तो सम ऑफ द टू फंक्शन वैल्यू विल बी 2 times the average value. So 2 pi fp is this, where b is another point between in between the interval. पहले एक x के स्टार था जिस पे कि हमने मीन वैल्यू इस्तेमाल की. अब जो एक और पॉइंट आ रहा है एवरेज वैल्यू इंटरमीडिएट वैल्यू का, उसके लिए हम x के स्टार स्टार यानी b इज अनदर पॉइंट बिटवीन दिस.
And ultimately, we write in terms of xk star and xk star star, one point between the interval we are working in and another point in the interval we are working in. So that is the area of frustum-like piece of the surface. So we add all such pieces to get the complete area of the surface of revolution, which has a structure. Curve was spread from x equal to a to x equal to b. The formula has 2 pi. And this pi has come from the formula of these area of frustum. 2 has come from the average value. Fx has come from the average value. And this 1 plus f prime x square has come from the length of the curve if you cut the frustum at the curved part perpendicular to the height of the frustum. So we need to remember this. If you have to revolve the surface around x-axis, you have this formula for the surface of revolution area. And if you are around function of y, around y-axis between y is equal to c and y is equal to d, then this formula modifies function of x replaced by function of y, derivative with respect to x of y replaced with the derivative with respect to y of x. Integration done on x in case the curve is revolved around x-axis, and the integration is over y, or the differential y is involved when the surface curve is revolved around the y-axis. So this is the development of this formula. But the application we consider only on simple cases. An example, find the area of the surface that is generated by revolving the portion of the curve y is equal to x cube. Now this is y is equal to x cube. And we have to find the surface area starting at x equal to 0 to x equal to 1. You know, y is equal to x cube as a general graph. It extends to infinity on this side, it extends to infinity on this side. But we are interested in the region only x is equal to 0 and x is equal to 1. जो भी function है हमारे पास x का है और we are revolving about x-axis. So we take the derivative with respect to x of the function, 3x square, 2 pi into function under the root 1 plus derivative of the function whole square integrated over x. Under the root, we get 9x power 4 plus 1, 9x power 4 plus 1. 2 pi taken outside, x cube dx के साथ मिला दिया और देखा कि differential of this is 36x cube dx. तो यहाँ पे differential के लिए 36 चाहिए. 36 से multiply भी किया, 36 से divide भी किया. And then u power half का integral u power 3 by 2 upon 3 by 2 limit substituted and result obtained. Here we have a simpler function y is equal to x square that we are required to revolve about y-axis between the limits x is equal to 1 to x equal to 2. I hope you remember y is equal to x square is a parabola. यार एक चीज रह गई तुम लोगों को जो मैंने अभी दिया है ना सिलेबस फॉर फाइनल, उसमें ये एलिप्स पैराबोला और सर्कल की जो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं वो भी शामिल हैं. तो मेरा ख्याल है इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट मैं निकाल दूंगा और उसकी जगह पैराबोला और ये सब थोड़ा सा रख दूंगा. I'll modify that as soon as possible. Okay, y is equal to x square, revolve around y axis to y x derivative with respect to y.
करना है इसमें हमें, चूंकि वाई एक्सिस पे है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन फंक्शन एज a function of x, we write down it as a function of y. So x is equal to root y about y axis. So function the derivative with respect to y, and that is 1 upon 2 1 upon root y. सिंप्लीफिकेशन में एक रूट y पहले से बाहर मौजूद है, और सिंप्लीफिकेशन में एक रूट y नीचे आ गया, ये रूट y कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, रह गया पाई 4y plus 1 पावर हाफ। तो 4y plus 1 का डिफरेंशियल है 4dy, तो 4dy बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, u रेस्ट पावर हाफ की इंटीग्रेशन करके लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, रिजल्ट हासिल कर। सो ये 7-8 प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा नहीं है, मैंने कंसिडर किए इसमें। Yes, in this topic, more important is the development of the formula. Of course, अगर हम ये कोर्स जो है 3-dimensional geometry completely पढ़ने के बाद करते तो ज़्यादा मज़ा आता। Look at this question number, कौन सा about x-axis चल रहा है? Let me take it this. Question number 4. x is equal to y raised to power 1/3 है, फंक्शन ऑफ y है, हमें रिवॉल्व करना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसको फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। तो रेस टू पावर 3 लेके y इक्वल टू एक्स क्यूब बनाया, y की लिमिट दी थी 1 से 8, तो x की लिमिट बनाएंगे 1 से 2। रिमेंबर ये ट्रिक्स हो सकती हैं कि यहाँ फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि रिवॉल्व अराउंड एक्स एक्सिस। तो ये जो पहले 3 प्रॉब्लम है तो चीज़ ऐसा आ गए हैं, फंक्शन लिया, फंक्शन डेरिवेटिव लिया, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेशन लिमिट्स इस्तेमाल किया और प्रॉब्लम सॉल्व किया। लेकिन फंक्शन ऑफ y दिया हुआ और अबाउट एक्स एक्सिस करना है तो फंक्शन ऑफ x बनाना पहले जरूरी है, यानी रोल चेंज करना x और y। So here we change the role, y is equal x is equal to y is power 1/3 के बजाय y is equal to x power 3। y की लिमिट 1 से 8 है तो x क्यूब हो गया, y is equal to x क्यूब, तो x की जो लिमिट होंगी 1 से 2 तक होंगी। So function of x 2 pi बाहर, function of x के डेरिवेटिव इनसाइड, एंड द सेम होल स्टोरी। सो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने का मतलब ये था कि यहाँ फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है लेकिन रेवोल्यूशन अराउंड x एक्सिस था, तो हमें क्या चेंज करना है, दैट आई डिस्कस्ड। So find the area of the surface generated revolve around y axis, और ये सब y के फंक्शन दिए हुए हैं। y का फंक्शन जो है हमारे पास जो फॉर्मूला है, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, पहले 4 सवाल जो हैं इस फॉर्मूले पे हैं, दूसरे 4 सवाल इस फॉर्मूले पे हैं। सो हियर फंक्शन फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नंबर 6, ओके, x is equal to y cube and y goes from 0 to 1, dx by dy निकालेंगे एंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, बाहर फंक्शन ऑफ y, अंदर फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर्ड, सिंप्लीफाइड, और एक ही तरह के सारे इंटीग्रल आ रहे हैं इसके अंदर। So I hope you will be able to go through them easily, and that's it for chapter 6. So ये पूछा जा रहा है कि sir, while doing these integrations we are allowed to solve questions by using substitution method? Yes, of course. मैंने तो कौन सा वाला मेथड इस्तेमाल किया है, मैं तो ये वाला मेथड इस्तेमाल किया है, fx raised to power n f prime x dx is equal to fx raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c if n is not equal to
माइनस। ये टेक्निक डिस्कस की थी ना मैंने बिल्कुल शुरू में सेमेस्टर में, और इसको भी हमने प्रूव किया था सब्स्टिट्यूशन से। तो अगर आप ये पैटर्न रिकग्नाइज कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रिकग्नाइज करें तो सब्स्टिट्यूशन से करें। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गई, u पावर n f prime x dx is du u power n plus 1 upon n plus 1 plus c। अब आप इस फंक्शन रख दिया तो फार्मूला प्रूफ हो गया। मैं तो ये फार्मूला, ये टेक्निक, फार्मूला नहीं, ये तो टेक्निक कहता हूँ मैं इसको, ये टेक्निक इस्तेमाल की हुई है। आपको इजाजत है कि आप सर्विस ऑफ रेवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6 की सारी चीजें डिस्कस हो गई। अब चैप्टर नंबर 10 की मटेरियल मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मैं अभी इसको स्टार्ट कर सकता हूँ डिस्कस करना, नहीं तो हमारे पास एक क्लास कल की है, और कहने को टेक्निकली अगली पीर और मंगल क्लास भी है। तो आप चाहें तो चैप्टर 10 के जो मटेरियल है उसका कुछ हिस्सा इस पर डिस्कस कर लूँ। Can you see this image of the book, page 10.1, parametric equation? Yes, sir. There are a few interesting things about parametric representation of curves, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। और whenever we represent a curve in C, तो एक चीज़ जो हम एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस करेंगे, और इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया है ब्लैंक पेज पे while I was talking about parametric, कि ये जो है, this is the equation of a circle of radius 3. This is not a function, continuous है, it is not a function. इसी तरह ये जो इक्वेशन है, this is representing an ellipse elongated more in the direction of y-axis as compared to x-axis. यानी मेजर एक्सिस 4 यूनिट ये है और ये माइनर एक्सिस 3 यूनिट है। ये फंक्शन नहीं है, वर्टिकल लाइन टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता, ये इम्प्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट फॉर्म है, एक्सप्लिसिट नहीं है, ठीक है। तो ख़ास तौर पे जब हम ऐसे फंक्शंस की बात करते हैं तो टेक्निकली जैसे ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, ये वाला टेक्निकली तो फंक्शन नहीं है, आप कहेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक। लेकिन अगर मैं उसकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिख डालूं तो ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है, ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये खुद फंक्शन हो सकते हैं। So that is the advantage of having parametric representation, and sometimes parametrically represent करके we can generate a variety of graphs that are not easily studied in case we use either y is equal to fx form or x is equal to gy form और the implicit form fxy, यानी इस इन फॉर्म्स में उनको स्टडी करना इतना आसान। स्टडी करने से क्या मतलब है, व्हेन वी आर स्टडिंग कैलकुलस, तो किसी भी फंक्शन को स्टडी करना या एनालाइज करना, इससे हमारा मतलब क्या होता है, भाई उसकी कंटिन्यूटी देखना, भाई उसकी डिफरेंशियबिलिटी देखना, सेकेंड डेरिवेटिव, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना, फिर कॉन्केविटी अप डाउन देखना, ब्ला ब्ला।
इस तरह की चीजें होती हैं। तो पैरामीट्रिकली अगर हम देखें तो हमें और नई नई बातें पता चलती हैं इस फंक्शन के बारे में। अच्छा जी, तो पैरामेट्रिकली जब मैं किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता हूँ, किसी कर्व को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका मतलब एक चीज, मतलब मैंने करेक्शन की ना, मैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहा, मैं कर्व को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ पैरामेट्रिकली। तो एक आर्बिट्री एग्जांपल यहाँ बना दी गई है। Sketch the trajectory over the time interval 0 to 10 seconds, for example, of the particle whose parametric equation of motion are given by this. X varies with time according to this formula, Y varies with time according to this formula. अब मैं t की वैल्यू 0 रखता हूँ, ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है। आप कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ये कैलकुलेशन करने में। मैंने एक्सेल से की हुई है तो फटाफट हो जाती हैं। t इज इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाली, पॉइंट प्लॉट कर दिया। t इज इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, पॉइंट प्लॉट कर दिया, एंड सो ऑन। तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 10 तक 1 के इंटरवल पे पॉइंट प्लॉट करते चले गए। एक चीज ये नोट करो कि मैंने t इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ, यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 लिखा है, t इज इक्वल टू 2 लिखा, ये बताने के लिए कि ये पहला पॉइंट है, दूसरा तीसरा अकॉर्डिंग टू t वैल्यूज। साथ साथ मैंने एक एरो बनाया हुआ है। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि एज टाइम फ्लोज फ्रॉम 0 to 10 seconds, as time flows from 0 to 10 seconds, the particle is moving in what direction? So ये direction of motion of the particle describe कर रहे हैं हम इस एरो से, और इससे हम ये आइडिया जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व के अंदर एक ओरिएंटेशन का सेंस है। Let us look at the graph of this. मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ अपने ब्लैंक पेज पे x इक्वल टू cos t और y इक्वल टू sin t बिटवीन 0 टू, पहले पाई किया कंसीडर किया था, यहाँ 0 से 2 पाई है, तो कंप्लीट सर्कल इज बीन कंसीडर्ड। सो x इज इक्वल टू cos t और y इक्वल टू sin t, 0 टू पाई तक जो है वो सिर्फ अपर सेमी सर्कल होगा इस फिगर का, और 0 से 2 पाई कंप्लीट सर्कल होगा। अब अगर t की वैल्यू 0 रखूँ मैं, cos 0 1, sin 0 0, तो ये वाला पॉइंट आया। अगर t की वैल्यू π/4 रख दूं तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो यहाँ पे वाला पॉइंट आएगा। इसका मतलब एज आई कंसीडर इज इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ t, point along the curve is moving in this direction. The direction is anti-clockwise. Here it was clockwise. So you'll see that orientation जो है, अगर हमारी पैरामीट्रिक स्कीम किसी कर्व को रिप्रेजेंट करने की ऐसी है, x इक्वल टू cos t, y इक्वल टू माइनस sin t, इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। यानी ये जो सर्किल हमने कंसीडर किया था इस पैरामीटराइजेशन से और इससे, यहाँ पे x इज इक्वल टू cos t था, यहाँ भी था, यहाँ y इक्वल टू sin t था, मगर y माइनस sin, इससे फर्क क्या पड़ा? अब अगर मैं t की वैल्यूज रख रख के पॉइंट निकालूं तो पहला पॉइंट ये होगा, फिर t की वैल्यू π/2 रख दूं तो π/2 का मतलब है cos π/2 विल बी 0 एंड sin π/2 विल बी 1, इसका मतलब -1, ये वाला पॉइंट आएगा 0 -1। यानी अब जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ रही है, पॉइंट्स आर बीइंग जनरेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि यहाँ पे पॉइंट्स वे जनरेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो याद रखें कि जब हम पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कर्व की डायरेक्शन है, या तो इट इज ओरिएंटेड क्लॉकवाइज और इट इज ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज।
यूजुअली हमारे मैथमेटिक्स में हम कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव और कौन सी ओरिएंटेशन को नेगेटिव कहते हैं? रोटेशन क्लॉकवाइज या रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज, इनमें से कौन सी पॉजिटिव कहलाती है और कौन सी नेगेटिव? कैन यू हियर मी? क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, अच्छा, और काउंटर क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। तो हमारी जो ओरिएंटेशन है वो अभी हम इसी कन्वेंशन पे लेंगे। तो x इज इक्वल टू कॉस टी माइनस साइन टी को मैंने भी प्लॉट करके देखा। अच्छा, मैंने एक्सेल शीट जो थी वो भी शेयर कर दी जिससे मैंने ये ग्राफ बनाए हुए। अगर आप लोगों को एक्सेल से इंटरेस्ट है या नॉलेज है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें बनाई नहीं मैंने यहाँ पे। हाँ, मैंने जो चीज़ें मैंने कहा था इंटरेस्टिंग देखनी है, मेरे पास अगर एक कर्व पैरामीट्रिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस कर्व, एंड आई वांट टू फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंडिंग द टेंजेंट लाइन, एंड टेंजेंट लाइन मेरे पास आमतौर पे y इज इक्वल टू y नॉट, ये क्या होगा, टेंजेंट लाइन मेरे पास ये गड़बड़ हो गई फिर। y is equal to y naught plus m times x minus x naught, where m is equal to tangent theta। और आपने शायद इस मुख्तलिफ स्टेज देख लिया हो कि अगर m 0 होता है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहलाता है, और अगर 1/m 0 होता है तो वर्टिकल टेंजेंट कहलाता है। तो हम टेंजेंट लाइन या टेंजेंट टू द स्लोप, टेंजेंट ऑफ द स्लोप अगर निकालना चाहते हैं तो हमारी तरकीब जो है तो वही dy बाई डी एक्स, लेकिन अब पैरामीट्रिकली रिप्रेजेंट किए हुए कर्व्स के लिए dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, यानी y डॉट अपॉन x डॉट, वी विल वर्क विद दिस। मगर इसके साथ ही बड़े मजे की चीजें आ जाती हैं। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए y डॉट 0 होना चाहिए, x डॉट 0 नहीं होना चाहिए। वर्टिकल टेंजेंट के लिए y डॉट 0 नहीं होना चाहिए, जबकि x डॉट 0 होना चाहिए। लेकिन अगर x डॉट और y डॉट दोनों 0 हैं तो अब dy बाई डी एक्स डिफाइंड ही नहीं है। इससे पहले जो हमने पढ़ी है ज्योमेट्री, उसमें ये तीसरी कंडीशन नहीं थी। हमारे पास ये कंडीशन थी कि अगर स्लोप 0 निकल आया तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, अगर स्लोप का रेसिप्रोकल 0 हुआ तो वर्टिकल टेंजेंट, जिसकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ये है कि y डॉट 0 है, x डॉट 0 नहीं है, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, न्यूमरेटर 0 है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट रहेगा। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 है और न्यूमरेटर 0 नहीं है, इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब वर्टिकल टेंजेंट आएगा। लेकिन अगर दोनों 0 आ गए फिर टेंजेंट डिफाइन नहीं है। ये हमारे पास उस सूरत में ये प्रॉब्लम नहीं थी। किस सूरत में, चलिए मैं आपको कहीं और ज़्यादा टाइम लेने के बजाय इसी कर्व पे दिखा दूँ। यहाँ पे देखो हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाया जा सकता है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे कर्व अपने आप को क्रॉस कर रहा है, यहाँ से टेंजेंट बनाओगे तो ये आएगा और यहाँ से टेंजेंट बनाओगे तो ये आएगा। एट दिस पॉइंट tangent is not defined because
m has two values, इसलिए टेंजेंट डिफाइन नहीं, इन्फिनिटी या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की वजह से नहीं, बस इस वजह से। सो डिफाइन ना होने की जो हमने यहाँ कंडीशन लिखी है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक तो हमने लिखा एक्स डॉट वाई डॉट दोनों जीरो, यानी ये 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म भी हो सकती है। ये दो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं डिवाई बाई डी स्लोप के डिफाइन ना होने की, और एक स्लोप के डिफाइन ना होने की वो रीजन हो सकती है कि स्लोप की एक से ज्यादा वैल्यू। So these are some interesting things that open up, that we are exposed to when we study parametric curves. With that, I terminate today's discussion, and we'll try to upload the lecture as soon as possible, and we'll continue this discussion tomorrow. Thank you very much. अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा।